House of Karnataka. Welcome you all to today's discussion on the movement of US dollar and how we can use that to our advantage. And we have with us our expert, Mr. Vijay Kaushik. Most of you may have heard him before. He has been in our faculty for many years. And since the situation is wherein the dollar is moving towards 85, it has reached 82 last week, and where it's going to stop, that we don't know. And the kind of geopolitical situation that we are facing, the things are uncertain, but we have with us our expert to guide us. Now, see, the movement of a dollar is a double-edged sword. Strengthening of dollar is a double-edged sword in the sense that exporters get benefited when you have a weak rupee against a dollar. But on the other hand, your imports get error. As far as India is concerned, we have a huge oil import bill, and when the oil prices increases, the dollar strengthens, the foreign outgo increases, and that has a rippling effect on a lot of raw material that we purchase. So that adds to the cost of our export product. On the one hand, we are gaining with the weakening of the rupee, but on the other hand, on the import front, we are losing. So it's a double-edged sword. But there's a silver lining. I mean, you can take advantage of any situation, and that's why we have our expert with us. And will also be joining us by our past chairman, Mr. Ravi Pasi. He's dead, and we are expecting some more guests. So meanwhile, we can start with a request, Mr. Kaushik, to start his discussions. Thank you, sir. Thank you. Am I audible? Good afternoon, everyone. Today we'll talk about currency dollar. It is, I think you all are aware of, last night around 1 AM, it has reached up to 82.82. 82 रुपये 82 पैसे कल रात को ये हिट कर चुका है. So I think smiles अभी सभी के फेस पे है, and I am sure the probability of further rise is very high. अगर आप I'll talk about the reasons. मैं भी reasons भी बताऊँ. So first of all, I'll start my presentation with one topic, like the risk exists, but is this risk for you? If it is rising, no, it's risk for importers. So I hope there is no importer in this session. Is there any? Okay, all are exporters. So we'll talk about risk, but now this time this risk is advantage for us. So how we can take the benefit of this further rise. So we'll talk about this in detail. So why this currency is rising? Because this is tradable across the globe. आज हम लोग डॉलर के बारे में तो बात करेंगे, but we'll talk about dollar index as well. So which is the base of, which is the index of dollar. If you compare with all the pairs like USD INR, USD GBP, USD JPY, or if you compare with any country, तो you will see कि वहाँ पे क्या changes हो रहे हैं और हमारे यहाँ पे क्या positive changes हो रहे हैं. But ये जो fluctuation है, why this is happening? Because you all are aware of US ने ये बहुत time पहले predict कर लिया था कि if they have to rule the world, तो उनको एक common currency और एक common language की ज़रूरत है. और आज इस डेट में देखिए जब पूरा वर्ल्ड क्राइसिस की तरफ जा रहा है, उनकी इकोनॉमी जो उनका जो करेंसी है वो स्ट्रेंथन होते ही जा रहा है. अब ये देखिए उन्होंने कितने सालों पहले इस चीज़ को प्रेडिक्शन कर लिया था और उन्होंने पॉलिसीज भी सब ऐसी बनाई है. I mean you and me, we are in India but we talk in English, right? आप ये देखिए जो उन्होंने काफी टाइम पहले, you are Indian, I am Indian, we are in India, we are in North India, and we are communicating in English. तो ये उन लोगों का फिर currencies. I am मतलब if I export to say Singapore, तो हम लोग डॉलर में ही क्यों कर रहे हैं? So उन लोगों ने बहुत टाइम पहले I think ये सारा एनालिसिस या सेटअप बना लिया था, जिसका उन लोगों को आज एडवांटेज हो रहा है, बट इम्पोर्ट्स के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो
सिंस अब उन लोगों ने इसको पूरी दुनिया में फैला दिया था, तो इसकी जो डिमांड है वो तो बढ़ती ही जा रही है। और डिमांड क्यों बढ़ रही है? देयर आर वेरियस रीजंस। अभी देखिए कि आई थिंक यू एंड मी वी कैन नॉट एनालाइज ऑल द फंडामेंटल सिचुएशंस जो पूरी दुनिया में हो रही है, चाहे यूक्रेन वॉर है या ब्रिटेन एग्जिट हुआ था इससे पहले या कोई क्राइसिस है, हम लोग नहीं उसको फोरकास्ट कर सकते। हमारे पास क्या सोर्सेज है फोरकास्ट करने के? एनी आंसर? IMF करता है। IMF करता है सर, वो भी एक, हाँ ठीक है, बट एज ए इंडिविजुअल सर, मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, व्हाट ऑल वी हैव टू फोरकास्ट द करेंसी? तो सर जो डेली रेट आते हैं ना उसका एवरेज निकाल के होता है। Chart patterns. Chart patterns is one of the ways. What else? Madam, any answer? Most of the corporates or any company they use news. News का जो फ्लो रहता है, जो टीवी में रहता है, बट उसमें ना आई डोंट नो, बट एक चीज तो शायद ऐसा लगता है कि जो न्यूज़ का फ्लो आ रहा है क्या ये प्लांटेड तो नहीं है? क्योंकि हमें तो सिर्फ उतना बताया जाता है ना जितना हमें कितना पता है, जितना मीडिया में अवेलेबल है, उसके अलावा तो वी डोंट हैव एनी सोर्स। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि इतना बड़ा डिमांड जो है वो इसीलिए क्योंकि ये ग्लोबली ट्रेड हो रहा है, पहली बात, और डिमांड ग्लोबली इतनी क्यों बढ़ती जा रही है? एनी आंसर व्हाई द डॉलर इंडेक्स इज राइजिंग, व्हाई डॉलर इज राइजिंग नाउडेज? बिकॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। सर मे बी पूरी दुनिया ना शायद ये रियलाइज कर रही है कि क्या वो मंदी की तरफ दे आर मूविंग टुवर्ड्स रिसेशन, इज द पॉसिबिलिटी, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ पीपल दे आर सिटिंग ऑन कैश। तभी तो वो ज्यादा से ज्यादा डॉलर खरीद रहे हैं एंड डॉलर प्राइस इज राइजिंग। तो मेरा ये मानना है कि जितना ज्यादा वो लोग डॉलर्स खरीद रहे हैं तो इसका मतलब वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। इफ यू टॉक अबाउट निफ्टी और अदर इंडेक्सेस ऑफ द डाउ जोन्स नैस्डैक, वो सब गिर रहे हैं, मगर डॉलर इट्स मेकिंग न्यू हाई बिकॉज हर बंदा कैश पे ही रहना चाहता है, बिकॉज जब भी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी तो दे विल यूज द कैश एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। जिसे बोलते हैं एवरीवन वांट्स कि भाई डॉलर प्राइस शुड राइज। और आज देखिए डिस्कशन में ना आई एम गोइंग टू डिस्कस वन मोर यूनिक यू नो स्ट्रैटेजी। आप हर हफ्ते भी कुछ ना कुछ अमाउंट अर्न कर सकते हैं इफ यू हैव डॉलर इन योर अकाउंट, एंड दैट टू इट इज ऑलमोस्ट रिस्क फ्री। अपना बिजनेस करना, डॉलर का एनालिसिस बैंक ने कुछ बता दिया, आपने ठीक है उसको रिव्यू तो कर लिया, बट एनालिसिस शायद आप लोगों का फर्स्ट जॉब नहीं है। तो मैं कुछ ऐसी भी बात करूंगा कि आप बिल्कुल भी एनालिसिस ना करें तो भी आप हर हफ्ते एक रीजनेबल अमाउंट अपने डॉलर से कमा सकते हैं। आज इस पे भी बात करेंगे। सो लेट्स गो अहेड। तो जब भी कोई अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो वी सी सच इम्पैक्ट्स लाइक डॉलर, सी इट इज राइजिंग, इन अदर केस इट्स फॉलिंग, सी दिस। तो कैन वी कैच दीज मूवमेंट्स? कैन वी कैच सर, कैन वी कैच दीज मूवमेंट्स? नो। देयर आर कपल ऑफ स्ट्रैटेजीज, सिंस ये आपका काम नहीं है, बट कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, अगर कोई सीखता है इन्हें तो वो जरूर शायद इस टाइप की मेजर इवेंट्स को कैच कर पाएगा। ये जो बड़ी मूवमेंट्स आती है, ठीक है, यूएस और यूक्रेन और रशिया का वॉर तो हो रहा है, वी आर अवेयर ऑफ, डॉलर विल मेक न्यू हाई, बट अप टू व्हाट एक्सटेंट दिस विल राइज? देयर आर टेक्निक्स, विद द हेल्प ऑफ दोज टेक्निक्स वी कैन यू नो प्रेडिक्ट द डॉलर। और अगर हमें 10 में से 6 बार 7 बार भी अगर हम ठीक है तो वी मेक गुड अमाउंट। और उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो वी हैव डिवाइडेड दिस इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट इज फोरकास्टिंग आज की टोटल डिस्कशन में, और सेकंड इज हेजिंग। देखिए फोरकास्टिंग हमें करना ही पड़ेगा अगर हमें कुछ हेजिंग करनी है, और अगर हेजिंग करनी है तो उसके लिए देयर आर कपल ऑफ स्टेप्स। देन फिर आपका रिस्क स्टार्ट होगा इन केस अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और ये पीक आउट करता है, तो टॉप आउट करता है, तब वहाँ पे हेजिंग की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। और लास्ट पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि भाई आप कुछ भी नहीं करते तो यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी एवरी वीक, दैट टू ऑलमोस्ट वेरी वेरी लो रिस्क। इज देयर एनीवन इन दिस ग्रुप which is who is aware of about options? Okay, you do it or you are aware? Okay, anyone this side? Okay, okay. So sir, right mix of forecasting and hedging is called risk management, or what I will say is it's opportunity management as well. Golden opportunity है तो इसको भी मैनेज करना है हम लोगों ने।
फोरकास्टिंग इज पॉसिबल ऑफ करेंसी. जिस भी टाइप का हमारा अप्रोच होगा उस पे. नाउ देर आर टू टाइप ऑफ अप्रोचेस. वन इज कॉल्ड फंडामेंटल अप्रोच एंड अनदर इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस. सर फंडामेंटल अप्रोच इन केस ऑफ करेंसी इज व्हाट? व्हाट इज फंडामेंटल अप्रोच और फंडामेंटल एनालिसिस? Global scenario. News, because in currencies we don't have any balance sheet, we don't have management. If you talk about stocks, share market, आपके पास वहाँ मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट है, बैलेंस शीट है. यू जस्ट रिव्यू द बैलेंस शीट, यू टॉक टू द मैनेजमेंट एंड देन यू डिसाइड टू इन्वेस्ट कि मुझे खरीदना है, बेचना है, क्या करना है. मगर इन केस ऑफ कमोडिटी एंड करेंसीज वी डोंट हैव एनी बैलेंस शीट. हम किस चीज़ का एनालिसिस करें? बस एक प्राइस तो बढ़ रहा है, ग्लोबल डिमांड है, ग्लोबल सप्लाई है, मगर ग्लोबल डिमांड सप्लाई का सोर्स क्या है, मैं कहाँ से पता करूँ? तो मैं किस पे डिपेंडेंट तो मुझे रहना पड़ता है ना. मैं एक एग्जांपल भी, आप में से कोई स्टॉक में कभी पार्टिसिपेट करा, शेयर्स में खरीदना या बेचना? सर ओके, आपने करा सर. ओके, सो व्हाट विल यू रिव्यू? आज सपोज टुडे यू हैव टू डिसाइड समथिंग दिस वीक और दिस मंथ. व्हाट विल यू रिव्यू? व्हाट वी हैव टू रिव्यू? इज देयर एनी मैनेजमेंट टू टॉक? नो. सिर्फ एक टर्म आती है, ग्लोबल डिमांड और ग्लोबल सप्लाई. इसके अलावा आपने कोई तीसरी टर्म नहीं सुनी होगी. सो बट वो जो ग्लोबल एंड डिमांड सप्लाई है दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन न्यूज़. न्यूज़ का फ्लो रहता है. अभी रशिया का अगर आप यूक्रेन के साथ देखें, उसके बाद अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स में इन्फ्लेशन इज़ एट द पीक. गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू, अगर आपने रिसेंटली कोई ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट देखा हो, यूएस गवर्नमेंट ने इतनी फास्ट इंटरेस्ट रेट्स इससे पहले कभी राइज नहीं करे जो इस वक्त करे. बट हमें कितना पता है? जितना मीडिया में अवेलेबल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता. चाइना में येस्टरडे आई हैड अ डिस्कशन विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स. वो कह रहे हैं वहाँ पे कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है इस वक्त. आर वी अवेयर ऑफ? नो, बिकॉज वहाँ से तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं आता. फिर ताइवान और चाइना एक मतलब एक इशू है. देयर आर एन नंबर ऑफ इशूज. डू वी हैव कंट्रोल ऑन इट? नो. तो वो हमारे पास कंट्रोल भी नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई बैलेंस शीट नहीं है, कोई नंबर नहीं है करेंसी को एनालिसिस करने का. सो हम क्या करें? फिर दूसरी बात, आई गिव वन मोर थिंग ऑन दिस. व्हाट आर द सोर्सेज वी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग फॉर करेंसी एनालिसिस? सर व्हाट यू लाइक टू से? व्हाट सोर्सेज वी यूज फॉर, लाइक करेंसी में अगर आपको कोई दिस मंथ और दिस वीक इफ़ यू हैव टू डिसाइड समथिंग और बाय और सेल व्हाटएवर, तो आप किस बेस पे डिसाइड करते हैं कि विजय अभी मुझे करेंसी को बुक कर लेना चाहिए और कन्वर्ट इनटू थोड़ा थोड़ा राइज होता है, आप 20-20 में कर लेते हैं? न्यूज़ बेस्ड है, करें. क्या ट्रेंड दिख रहा है उसके हिसाब से. राइट, एब्सोल्युटली. सो वो जो न्यूज़ का जो हमारे पास फ्लो रहता है, दैट इज थ्री, देयर आर द थ्री सोर्सेज: प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ऑनलाइन मीडिया. इन्हीं को ही रिव्यू करते हैं और उसी के बेस पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं. बट अभी ना एक ना थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है. अभी क्या हो रहा है, बड़े बड़े जो एक्सपोर्ट हाउसेज हैं या इम्पोर्ट हाउसेज हैं, दे हैव स्टार्टेड लर्निंग द स्ट्रैटेजीज हाउ टू फोरकास्ट करेंसी प्राइसेस, हाउ टू फोरकास्ट कमोडिटी प्राइसेस. अभी इसमें बट कई बार होता है मैनेजमेंट के पास टाइम नहीं होता, प्रमोटर्स के पास दे डोंट हैव टाइम टू एनालाइज द करेंसी. एक इसके अंदर बड़ा इमर्जिंग ट्रेंड है, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो उनको सिखाते हैं और उसको बिजनेस के अंदर लेकर आते हैं. Recently, I am, there is a very well-known company of CMR, Century Metal Recycling. It is the India's largest supplier of all the auto manufacturers as well as the ये spare parts manufacturers. अब वो क्या करते हैं, उन पे टाइम ही नहीं है, तो उन्होंने उनकी जो बेटे हैं, जो उनका नेक्स्ट जनरेशन है, अब दे आर लर्निंग दिस स्टफ एंड दे हैव स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग इट विद वन एज मिनिमम एज पॉसिबल यूनिट्स. आप $1000 पे ही पहले जो सीखे उसको इम्प्लीमेंट करो. व्हाट विल बी द मैक्सिमम लॉस ऑन $1000? नथिंग. बट दे विल लर्न द स्टफ, राइट? हाउ दे आर उसको लर्निंग भी हो रहा है, अब उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं. हाउ दे इम्प्लीमेंटेड. दे आर द बिग कॉर्पोरेट्स, दे हैव सॉफ्टवेयर्स, दे आर वेल इक्विप्ड विद द सॉफ्टवेयर्स. लाइक आपने शायद नाम सुना, ब्लूमबर्ग है, थॉमसन रॉयटर्स है. दे आर द बिग सॉफ्टवेयर्स, बट दे आर ओवरलोडेड विद द इंफॉर्मेशन. बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी इसको इसीलिए लेते हैं कि उनकी एक मजबूरी है. लाइक रिसेंटली मैं बताता हूँ, इनकी कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है. 6-7 लाख रुपए से कॉस्टिंग सिर्फ स्टार्ट होगा इसका, एंड कॉस्टिंग गोज अप टू 24 लाख रुपीज़ पर एनम.
तो जिसका एक्सपोजर इससे बहुत ज़्यादा होगा, ओनली दोज कॉर्पोरेट कैन अफोर्ड दिस, अदरवाइज इन जनरल अफोर्ड नहीं करा जाता. लास्ट सोर्स इज बैंक न्यूज़ लेटर. भाई न्यूज़ हमारे पास कैसे आएगा? बैंक गिव्स अस द न्यूज़ लेटर. जस्ट बी फ्रैंक एंड बी ऑनेस्ट. जो बैंक आपको एडवाइस करता है या गाइडलाइंस देता है, कितने % वो एक्यूरेट रहता है कि भाई इस महीने इतना चला जाएगा, वो हो जाएगा? आज का सिनेरियो नहीं, ओवरऑल सिनेरियो में क्या कहेंगे आप? दिस साइड सर, कितने % बैंक एक्यूरेट रहता है? अच्छा, हार्डली 25%. सर दिस साइड एक बार करा था उनके एडवाइस पे, बट मेरे को लाइक टोटली ऑपोजिट. ओह सर, ये सब चैलेंजेस हैं बिकॉज फाइनली दिस इज आवर मनी, आवर डिसीजन, आवर बिजनेस, वी हैव टू टेक द फाइनल कॉल. सो दीज आर द सोर्सेज विच वी यूज. बट इसके साथ में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, challenges of fundamental analysis of the data. Here fundamental is only news, no balance sheet, no management, only news. Now the question is, how will we analyze the news? First challenge with the fundamental data is there any source which provides 100% news? लगता है कोई सोर्स है जो 100% नहीं है. Sir, what I say is they give maximum news but not the 100%. Thomson Reuters, Bloomberg, अब they are also overloaded with the information. We have limited time. वो एक bandwidth भी तो देना है ना उसको. सर इतनी information को हम कैसे पढ़ेंगे? और are we expert to analyze that news? Because our first job is to run the business. दूसरा, पहला चैलेंज है, कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो 100% न्यूज़ पे है, और यूएसएस इन्फ्लेशन वहाँ पे है. फिर यूरोप का तो आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ, इफ़ यू आर इन टच विद द न्यूज़, एनर्जी प्राइसेस, एनर्जी क्राइसिस. मोस्ट ऑफ द न्यूज़ चैनल्स दे आर सेइंग कि दिस विंटर वो उनको बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं. मे बी देयर आर द पॉसिबिलिटीज, देयर कपल ऑफ कंट्रीज आर गोइंग टू कोलैप्स. कैप भी कर दिया, मगर गवर्नमेंट के रिजर्व की भी तो एक लिमिट है ना, बिकॉज दे हैव टू फोकस ऑन अदर डेवलपमेंट एज वेल. नाउ द क्वेश्चन इज, एक न्यूज़ है जिसमें यूरोप को डेंट आने वाला है काफ़ी बड़ा, और यूक्रेन वॉर अभी तक फिनिश नहीं हुआ है. कैन वी एनालाइज ए न्यूज़? इज देयर एनी बुक written on the subject how to analyze a news, or is there any training institute which gives us the training how to analyze a news? चलिए, आपने फिर भी एक एज्यूम कर लिया, विजय वॉर होने वाला है, लोग सब कुछ बेच के कैश में बैठे हैं, कैश इज डॉलर, दैट्स व्हाई डॉलर प्राइस इज राइजिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब हमें ये पता ही नहीं, वी कैन नॉट एनालाइज ए न्यूज़ बिकॉज देयर इज नो इंस्टीट्यूट, नो बुक, नो मैकेनिज्म, नो टेक्निक. तो ये तो पता लग गया अभी राइज करेगा, मगर कितना और कब तक? इस चीज का आंसर न्यूज़ से शायद कभी नहीं मिल पाएगा. न्यूज़ डायरेक्शन दे सकता है, मगर न्यूज़ ये नहीं बताएगा कि अप टू व्हाट एक्सटेंट दिस विल गो अप. बट देयर आर कपल ऑफ strategies, we'll talk about it, which is called technical analysis. With the help of the technical analysis, we can catch the movement of this falling and rising dollar. Now we'll talk about it. What is technical analysis? One is called fundamental. सर वहाँ पे चैलेंज ये है, न्यूज़ है बट न्यूज़ का एनालिसिस कैसे करें? Another is called technical analysis. What is technical analysis? It is nothing but the chart based system. हिस्टोरिकल चार्ट को हम स्टडी करते हैं एंड देन वी ट्राई टू फोरकास्ट द प्राइस. भाई कितना अब ऊपर जा सकता है? तो देखिए, लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट द मैनेजमेंट ऑफ EPCH. रीजन इज दिस, टुडे येस्टरडे वी आर एट 82.82 इन NDF. नॉन डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में कल रात को डॉलर करीब 1 बजे के आसपास 82 रुपये 82 पैसे जा चुका है. इन्होंने बिल्कुल राइट टाइम पे डिसीजन लिया कि विजय लेट्स ऑर्गेनाइज दिस. ठीक है, थोड़ा बारिश आ गया, देयर आर द चैलेंजेस विच इज़ द एक्सटर्नल फैक्टर्स, बट बिल्कुल राइट टाइम पे जो हिट करना है ना, वो यही है, टू मेक यू अवेयर what to do now. It is a chart based system which provides the decision oriented information for trading, investing, hedging to increase the probability of success. Is there anyone who trades as well? कभी ट्रेड करा है सर? Sometime. Not I mean Okay. long term, right? Okay. Otherwise, सर शॉर्ट टर्म कभी ट्रेड करा है? करेंसी और स्टॉक करेंसी. Okay. Is this side?
No. Okay, there are couple of SMEs and corporates, they have separate department to do this. तो उनका ये रहता है कि वो अपना ट्रेडिंग भी हर रोज़ का करते रहते हैं और बट इन केस आपका हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हेजिंग है, तो हेजिंग हम इस मैकेनिज्म से कर सकते हैं और इफ़ वी डू इट नाउ डेज वी आर नॉट वी डोंट हैव एनी अप्रोच टू एनालाइज दिस और इन केस इफ़ वी अडॉप्ट इट देन डेफिनेटली वी विल इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. आज तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, वी आर प्योरली डिपेंडेंट ऑन बैंक्स. सर ने बोला विजय एक बार करा उनकी गाइडलाइंस पे वो उल्टा ही हो गया. वैसे जब भी आप पूरी कम्युनिटी से पूछेंगे तो वो कई बार यही आंसर देते हैं कि वो उतना एक्यूरेट नहीं है, वो दे डू देयर बेस्ट बट फिर भी वो नहीं कर पाते. तो इफ़ यू लर्न दिस टेक्निक और इफ़ योर नेक्स्ट जनरेशन लर्न्स दिस, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल ग्रैब एंड दे विल इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. और सर मुझे ये लगता है अगर आप इसमें से 10 में से आपके 6 डिसीजन भी ठीक है तो वो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज ही है, आपको पैसा वो कमा के ही देगा. तो हम लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं और इस टेक्निक से हमें ये भी पता लग जाएगा लाइक वी हैव टू सी ओनली सेकंड कॉलम एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर. सेकंड कॉलम में हमने एक्सपोर्टर्स के बारे में बात करा है. सो एक्सपोर्टर क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है डॉलर का वो हम पता लगाएंगे, मीडियम टर्म ट्रेंड क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है. इफ इट इज इन अवर फेवर विल सिट क्वाइट और बट इफ इट मूव्स अगेंस्ट तो फिर हमें हेज करना ही है, राइट. तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में. सो आई विल डायरेक्टली जंप ऑन द फॉर्मेशन बेस्ड एनालिसिस. टेक्निकल एनालिसिस को सर हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, फॉर्मेशन बेस्ड एज वेल एज द फॉर्मूला बेस्ड. सो वी विल स्टार्ट विद फॉर्मेशन बेस्ड. व्हाट इज अ बुल, डॉलर इज बुलिश, राइट. हाउ विल वी ड्रॉ द बुलिशनेस, कैसे ड्रॉ करेंगे कि डॉलर तेज है, बहुत तेजी है. हाउ विल वी ड्रॉ इट, uptrend, it's just rising. Is there any addition in this? How will we draw this, sir? It's just rising, it's a bull, or buyers are more than the sellers maybe, or in optimized definition buyer is ready to buy at the seller's price. Buyer is ready to buy at the seller's price and seller always sells at the higher price, right? So that means अगर सेलर ने बोला कि मेरे को तो 84 में बेचना है, बायर इज रेडी टू बाय, दैट मींस ये बुलिशनेस है. मगर जब हम मैथ्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, डिमांड्स की बात करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है. दिस इज द स्ट्रक्चर. हाँ ये देखिए, यहाँ से इट्स राइजिंग, सी दिस, देन करेक्शन, फिर राइज करेगा, फिर करेक्शन एंड फिर राइज करेगा. There are three terms which is called A1, A2 and A3. These are called resistance level. Importers, exporters, governments, funds, speculators, traders. बहुत से लोग होते हैं सर, मगर कोई भी A1 के ऊपर नहीं ट्रेड करना चाहता, ना ही खरीदना चाहता. What it exactly it is called resistance level. What is B1, B2? Support level. No one is ready to sell. कोई एक बंदा नहीं ट्रेड करता. देयर आर एन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स और करेंसी वर्ल्ड की मोस्ट लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है. स्टॉक्स इसके सामने कुछ भी नहीं है, कमोडिटीज कुछ भी नहीं है जितना ट्रेड इसके अंदर होता है, राइट. बट स्टिल नो वन इज रेडी टू ट्रेड बिलो B1. दैट मींस दिस कॉल्ड सपोर्ट. नाउ व्हाट टू डू विद द हेल्प ऑफ a tool, we will just connect A1, A2, A3 with the help of a line. See this? What is the beauty of this? Sir, whenever it reaches at the higher upper line, you just see the correction. Correction means price will fall down. Look at it. See this? There is a correction. So that means whenever we reach at the resistance level, तो वहां पर एक करेक्शन आता ही है. करेक्शन मतलब गिरावट. और whenever we reach at the support level, it bounces back और अभी ये वहां से बढ़ने लग जाता है. मैं आपको डॉलर का चार्ट दिखाऊंगा अभी, बिल्कुल ऐसे ही चलता है. ये देखिए, इसको हम बाद में एक बार रिव्यू करेंगे. ये देखिए, ये पूरा केवल डॉलर का ही चार्ट है. सी दिस, राइज, रेजिस्टेंस है अपर लाइन, फिर करेक्शन, फिर राइज
exactly at the resistance level, then correction, resistance at the upper line, correction, resistance at the upper line, and then correction. What does that mean? How can we use this, right, for our decision making? कैसे यूज करेंगे सर अपने डिसीजन में? मान लीजिए आपको डॉलर को अगर रुपी में कन्वर्ट करना है, तो दिस इज द राइट टाइम, व्हेनेवर इट रीचेस एट द अपर लाइन, इट्स राइट टाइम टू सेल. और सब, and whenever we are at the support line, which is the lower line, then what to do? either होल्डिंग को स्क्वायर ऑफ कर दो या फिर बाय कर दो. Sir, in this case, if you give some time to dollar, then the probability of upside is very very high. आप 2 हफ्ते रुकिए, 3 हफ्ते रुकिए, फिर देखिए वो एक नई ऊंचाई पे जाएगा, और जब नई ऊंचाई पे जाएगा तो आपको फिर वहाँ पे ज़्यादा एडवांटेज. देखिए डॉलर जब भी राइज करेगा वो इसी फॉर्मेट में करेगा, और आज के इस डिस्कशन में मैं यही आपको दिखाऊंगा, लाइव चार्ट्स पे दिखाऊंगा, और इसी चीज का एडवांटेज अब आप लोग भी ले सकते हैं. अपर लाइन इज गो, देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्शन, exactly, and whenever it reaches at the lower line, then you notice a bounce back or a struggle. So this is a struggle, ये वाला स्ट्रगलिंग एरिया है, बट एग्जैक्टली एट द सपोर्ट लाइन. लुक एट दिस, व्हेनेवर वी रीच एट द रेजिस्टेंस देयर इज अ करेक्शन, व्हेनेवर रीच एट द रेजिस्टेंस देयर इज अ करेक्शन, व्हेनेवर वी रीच एट द करेक्शन, रेजिस्टेंस एट द देयर इज अ करेक्शन, एंड देन लुक एट इट. After whenever we reach at the support line, we see a rise, we see a rise, we see a rise, and this, look at the rise. So sir, whenever we have to just simply plot it. एक one time job है, आप कर दीजिए. देखिए मैं एक बात ये बोलता हूँ कि मैनेजमेंट के जो डिसीजंस होते हैं ना, अगर वो राइट टाइम पे ही ले ले तो भी आप एक बहुत बड़ी वैल्यू या एक बहुत बड़ा एडवांटेज इस बात का ले सकते हैं. एक तो नॉर्मल है सर, आपने जब भी कोई एक्सपोर्ट था या करा या ऑर्डर आया, मान लीजिए वो 80 रुपीज़ का प्राइस था, और जब आप बुक कर रहे हैं तो 84-85 का प्राइस है, तो ये 5 रुपये का भी आप एडवांटेज ले सकते हैं. अब तो वोलेटिलिटी इतनी होती है, 2-3 रुपये के लिए तो बात ही करनी पड़ती है. पहले तो 25 पैसे, 50 पैसे, और एट द मोस्ट 1 रुपी, मगर नाउ द वोलेटिलिटी इज टू हाई. वी इन जनरल वी टॉक अबाउट 1 or 2-3 रुपीज़ कि जब भी मुझे लगता है कि अगर आप राइट डिसीजन लेंगे तो एक बड़ा एडवांटेज आप लोगों को हो सकता है. सो ये तो चार्ट हुआ डॉलर का. अभी नाउ विल टॉक अबाउट डॉलर इंडेक्स. व्हाट इज डॉलर इंडेक्स? इज देयर एनी सर कोई आइडिया है डॉलर इंडेक्स के बारे में? डॉलर सारी अलग-अलग करेंसी से जैसे ट्रेड होता है, Correct. उसको मिला के तो उसका इंडेक्स बना Correct. है, उसी का इंडेक्स. देखिए डॉलर का पेयर पूरी दुनिया में हर कंट्री के साथ है. यू टॉक अबाउट यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी, आईएनआर यूएसडी और सीएडी, कैनेडियन स्विस फ्रैंक, व्हाटएवर. तो इसमें से पूरे जब डॉलर का एक वो देखा जाता है एज अ होल, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन सी करेंसी का है, तो उसका एक इंडेक्स बना टॉप 5 करेंसीज का. टॉप 5 करेंसीज है इसके अंदर वर्ल्ड की, और उससे एक चार्ट ड्रॉ होता है, वो कैसा परफॉर्म कर रही है अब मैं वो दिखाऊंगा. Now I just plot the same theory on it. New high with the corrections. जो भी अभी मैंने बात करा है आप लोगों से, ये उसी फॉर्मेट में ही मूव कर रहे हैं. अगर आप मेरा माउस मूवमेंट देख पा रहे हैं, whenever it was at the bottom line, there is a rise. After reaching at this line, there is a correction. फिर rise, फिर correction, and after hitting the now recent peak was this. अभी यहाँ से करेक्शन राइज कर रहा है, तो जो शॉर्ट टर्म अपने को लगता है सर, जो रीसेंट एनालिसिस अगर मैं बात करूँ, इट इज गोइंग टू हिट 116, 116 रुपये का ये हाई बनाने वाला है. मे बी ये शायद इसका 20 साल का हाई है. 20 साल में आज तक ऐसा नहीं हुआ जो इतने पीक पे गया है. व्हाट डज दैट मीन? व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस? इफ यू टॉक अबाउट यूएसडी INR, इफ इंडेक्स इज राइजिंग देन अदर पेयर विल आल्सो, एंड we are already at the resistance, right? So what I suggest is, if probability of dollar index rise is very very high, अभी वो तो बढ़ेगा कितना, आज 112 है, 120 तक, that means 8 रुपया हमारे यहाँ पे कुछ तो इम्पैक्ट आएगा, right? 6% rise of current value is how much?
5 rupees today, yesterday's close was 81 point something. आप उसमें 5 रुपीज राइज करते हो. चलिए मान लीजिए हम लोग एक एरिया ऑफ एरर रखते हैं, स्कोप ऑफ एरर. मान लीजिए हम उसमें 6-7% नहीं 5% ही एज्यूम करते हैं. तो अगर हम देखें तो यहाँ से 84-85 इज लाइकली, और ये बहुत क्विक होगा. सो व्हेनेवर इट रीचेस एट 85, आई स्ट्रांगली रिकमेंड स्टार्ट बुकिंग योर पोजीशंस. मुझे नहीं पता आप में ये प्रैक्टिस होता है नहीं होता, व्हेन डॉलर राइजेस ना, बायर होता है ना, वो भी नेगोशिएट करते हैं. इज इट हैपेंस? सो इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस. सो व्हाट आई स्ट्रांगली रिकमेंड इज कि वो उसको आप कैसे करोगे, दिस इज ऑल अप टू यू. खैर उसका मैं आज एक वे आउट बताऊंगा बाकी टेक्निक दूसरी टेक्निक से. बट 85 तो सर अपने को लगता है 84-85 जैसे ही हिट हो तो फिर आप लोगों को अपना बुकिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, स्लोली एंड ग्रेजुअली और पार्शियली, थोड़ा थोड़ा जरूर करना चाहिए. बट मुझे लगता है अभी तो वेट करने वाला टाइम है. नाउ अगेन वी आर एट द चार्ट, द रेजिस्टेंस लाइन, देन देयर इज अ करेक्शन, सपोर्ट के बाद फिर बाउंस बैक आया है. तो ये तो इस अगले 1 से 2 हफ्ते में भी हमें एक अच्छा मूव लगता है. और आने वाले टाइम में हमें कम से कम ये यहाँ से 84-85 के बीच में जरूर लगता है. अब इसमें आपको कंसर्न क्या है ये मैं बता देता हूँ. इसमें अब आपको क्या 85, इफ इट फॉल्स इमीडिएटली दैट मींस ड्रॉप आउट हो गया. हाउ टू आइडेंटिफाई कि और ऊपर जाएगा नहीं जाएगा. इफ इट सस्टेन्स विद इन द टेरिटरी ऑफ 84-85, 84-85, 84-85, दैट मींस दिस विल गो फर्दर अपसाइड. अभी और ऊपर जाएगा सर अगर वहां रुकता है कुछ दिन, और अगर रुकना नहीं है, मान लीजिए 85 हिट करो और अगले 1 या 2 दिन के अंदर वो 83, 82.50 और कुछ हफ्तों में वो फिर से आ गया, फिर देखो टॉप आउट हो चुका है. मगर अगर वो सस्टेन कर गया विद इन द लिमिट, तो आप यू जस्ट मार्क माय वर्ड, दिस विल गो अप. ये वहां से आगे और ऊपर जाएगा, तब आप वेट कर सकते हैं. सो इन केस वहां पर रुके तो आप भी वेट करिए, और अगर शार्प करेक्शन आ जाए आफ्टर हिटिंग ए न्यू हाई, देन स्टार्ट बुकिंग योर पोजीशंस, राइट. बट अगर आप इस पूरे मैकेनिज्म को सीखते हैं या अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हैंडओवर करते हैं, हाउ दे कैन जॉइन योर बिजनेस एज वेल, सो फिर वहां पे वो लोग काफी ऑप्टिमाइज्ड डिसीजन रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं. इन दिस फॉर्मेट ओनली, दिस विल राइज इन दिस फॉर्मेट ओनली, which is called higher top higher bottom. Now my question is, it is a very small quiz. Now this is your chart. What will you do at this stage? Dollar is at this level. Right. In this case we will wait because the probability of reaching at the resistance level is, ये वाले level पे पहुंचने का probability बहुत ज़्यादा है. Clear है? Any doubt? Now again we will come to this. So what we have to do is investing.com. You can write the website name, investing.com is the website where you can plot these lines. You know the how to plot it, or you want me to help you out? एक बार मैं बताऊं क्या आपको पता है? एक बार बताओ. सिर्फ ट्रेंड लाइन यूज करें. सर बेसिकली देखिए आज ना बुल चल रहा है तो मैंने वही वाला टॉपिक कवर करा है. Otherwise, overall, there are approximately 20 topics या 20 types of patterns. अगर हम वो सब सीखते तो there are other tools as well. Otherwise, जो basic bull और bear के है वो यही parallel है. हाँ जी. Tool console ये वाला, इसी के अंदर एक parallel channel है. Click on it. Click 1. आपको रुकना वहां पे है जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सपोर्ट है, लाइक दिस. और कहां तक जाना है? जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस. डन. आप इस तरीके से इसको राइट. सो वो सारी चीजें हैं. आप बस इसका राइजिंग और फॉलिंग सिर्फ लगा के रखिए, और यू विल नोटिस डॉलर विल मूव इन दिस स्ट्रक्चर इफ इट इज राइजिंग. बात करें या करेंसी की बात करें, राइज सिर्फ इसी फॉर्मेट में होगा
किसी का बहुत अच्छा समय भी चल रहा हो ना, तब भी उसकी लाइफ में छोटी मोटी करेक्शंस आएंगी ही आएंगी, राइट। और बहुत ही बेकार वक्त चल रहा हो तो भी बाउंस बैक आएंगे, मतलब अच्छा वक्त भी आता है। तो कहने का मतलब है व्हेन ओवरऑल प्राइस इज राइजिंग तो आपको इसको देखना है। अच्छा एक चीज और है, करेक्शन इज ऑलवेज गुड फॉर मार्केट। करेक्शन मींस जब एक राइज के बाद थोड़ा सा एक फॉल आता है, इट्स ऑलवेज गुड फॉर मार्केट एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द मार्केट एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द बुल रन। तेजी है, करेक्शन है, करेक्शन आएगी ही आएगी, इट्स अ पार्ट ऑफ द बुल रन, राइट। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, जब भी करेक्शन आना है सिंपली सिट टाइट, दैट्स इट। आप सपोर्ट लेवल पे आने का वेट करो और फिर इसको डिसीजन ले। आई एम श्योर यू विल ऑप्टिमाइज योर डिसीजंस, बहुत अच्छे इंपैक्ट आएंगे आपके डिसीजंस पे। तो कुछ डेफिनेशन जो मैंने पहली लाइन में लिखी है इसकी बुल की, हायर टॉप एंड हायर बॉटम, दैट टॉप इज रेजिस्टेंस एंड बॉटम इज सपोर्ट, both are rising. Sir, you can take the photograph of, and then correction. Correction is always good for market. 1973 स्टार्टिंग हुआ है इसका 1973 से, और वो रेजिस्टेंस पे जाके रुक रहा है हमेशा हमेशा, राइट। सो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म चार्ट है, ये शॉर्ट टर्म है। जब हमें शॉर्ट टर्म मूव्स चाहिए होते हैं तो हम लोग बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे इसको लगाते हैं। मैं शॉर्ट टर्म पे यू नो करेंसी और एनी चार्ट स्टार्ट्स मूविंग अबव द राइजिंग चैनल लाइक दिस, दैट मींस अभी इसका मतलब क्या है, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है और ज्यादा तेजी और जल्दी आएगी। दैट मींस जो मैंने आपको डॉलर का चार्ट दिखाया है, इफ डॉलर स्टार्ट्स मूविंग अबव द राइजिंग चैनल तो और ज्यादा बढ़ेगा, जल्दी बढ़ेगा। मगर इन सेकंड सिनेरियो इफ इट स्टार्ट्स मूविंग बिलो द राइजिंग चैनल, सर इट्स एंड ऑफ बुल रन। व्हेनेवर इट स्टार्ट्स फॉलिंग बिलो द राइजिंग चैनल, तेजी का चैनल बनाया था, उसके नीचे अगर ये गिरता है तो ये एंड ऑफ तेजी बोला जाता है। तो इसका मतलब है वहां पे आपको हेजिंग करनी ही चाहिए। हाउ वी बाय सेल फ्यूचर डेटेड का डॉलर at this price you will sell it, so जब नीचे जाएगा then what else? कॉल ऑप्शन पता है सर? कॉल ऑप्शन पता है आपको क्या होता है सर? एनी आइडिया? देयर आर टू ऑप्शंस, विल टॉक अबाउट इट। आज हमारा एजेंडा भी है, मगर अभी हेजिंग की बात करनी जरूरी है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो कुछ ही टाइम पहले, मतलब अब अवेयरनेस इसकी बढ़ती जा रही है। ऑप्शंस की बात करेंगे तो आपको जो हेल्पफुल है वो पुट ऑप्शन है, नॉट कॉल ऑप्शन। व्हाट इज पुट ऑप्शन? इट इज नथिंग बट एन इंश्योरेंस फॉर यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मान के चलिए आज 85 रुपए डॉलर हो गया और आपको लगता है यही टॉप है बस, तो आप बैंक जाते हैं और यू जस्ट सेल इट। मान लीजिए 85 आपको मिल गए, मगर व्हाट हैपेंस इफ इट गो फर्दर अप और ऊपर जाएगा तो क्या होगा? इट्स ए नोशनल लॉस फॉर अस। 85 से कितना हो गया ये? मान के चलिए सपोज 86 87 हो गया, तो हमारे लिए तो लॉस है। तो क्या बैंक से जो हम हेजिंग करते हैं इट्स ए कंप्लीट हेजिंग और अ पार्शियल हेजिंग? बैंक में जाएंगे सर 85 या 84 रुपए पे आपने सेल कर दिया, उसके बाद 1 रुपया या 2 रुपया और बढ़ गया, व्हाट डज दैट मीन? It's a partial hedging, not a complete hedging. What is complete hedging is suppose you buy put when the dollar reaches at the 85, आप put option खरीद लीजिए। Case number 1, if it rises, it's yours. If it falls, then put option will give you the entire loss. जो भी आपका लॉस होगा वो पूरा आपको देगा। मान लीजिए 85 से गिर के बिल्कुल शार्प ड्रॉप आया और 80 रुपीज आ गया, कितने रुपया फॉल है? 5 रुपया। और आपने जो इंश्योरेंस का खर्चा लिया था सिर्फ वो 50 पैसे, तो 4 रुपीज 50 पैसे का सर आपको पूरा रिफंड आ जाए। तो आपको एडवांटेज है, आपको तो 85 ही मिलेंगे, मतलब ये है। क्लियर है ना ये सर? आपको तो 85 ही मिलेंगे, चाहे वो अब यहाँ से 78 भी आ जाए, तो वो पूरा नुकसान जो है उसकी भरपाई कौन करेगा?
put option. So what I suggest is, if you want to learn this, buy 1 unit. $1000 का 1 यूनिट आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में. देखिए, इट्स नॉट अ रिस्क. 1000 into 50 पैसा इज हाउ मच? कितना हो गया? 500 रुपया. सर मेरी बात मानिए, इफ यू वांट टू लर्न दिस, व्हेनेवर डॉलर रीचेस एट द पीक, बाय द इंश्योरेंस. व्हेन टू बाय इंश्योरेंस? व्हेनेवर वी आर एट द पीक. वही तो पैसा है हमारा सबसे ज्यादा. व्हेनेवर डॉलर रीचेस एट द टॉप, ऑलवेज बाय द इंश्योरेंस, नॉट व्हेन इट फॉल्स. सर अगर आप बिल्कुल 85 रुपए पे ही खरीदें, या जब भी वो रेजिस्टेंस लाइन पे पहुंचे तब आप उसका इंश्योरेंस करिए, चाहे वो 30 पैसे का है, 50 पैसे का है. वी वॉन्ट यू टू लर्न दिस. टेक अ लर्निंग कॉस्ट, से इट इज 500 रुपीज, लीजिए. फिर आपको ये नोटिस होगा, अगर डॉलर यहाँ से किसी भी दिन गिर गया तो सर उस इंश्योरेंस का भाव बढ़ जाएगा. इसका मतलब है जितनी गिरावट आई आपको उतना पैसा मिल जाए. क्लियर है? एनी डिस्कनेक्ट? किसी को भी डिस्कनेक्ट है तो बताइए. तो सर फिर ये बताइए मुझे, रिस्क हमने काफी हद तक कम कर लिया, बट इस रिस्क के लिए ना विल हैव टू टेक ए कॉस्ट. उसका एक इंश्योरेंस का कॉस्ट है, ये लॉस नहीं है. जब तक आप इसको लॉस मानेंगे आप इसको नहीं कर पाएंगे. आप, मेरे पास कार है, मान लीजिए 10 लाख रुपए की कार है, इंश्योरेंस भी तो उसका तो लेते ही है ना. क्यों लेते? क्योंकि गवर्नमेंट का प्रेशर है. इज दिस द रीजन? आप 1 करोड़ की कार लो और मैं कहता हूं गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन हटा ले, विल यू अफोर्ड विदाउट इंश्योरेंस? आई विश. आप बहुत, आई एम श्योर होगी भी बहुत से लोगों पे. मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ की कार है और इंश्योरेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. सर अफोर्ड कर सकते हैं आप विदाउट इंश्योरेंस? कर लोगे? यस और नो? आपने ना दोनों साइड. तो सर ऐसे ही डॉलर तो हमारे हर रोज का ही है. हाउ कैन वी अफोर्ड दिस? राइट? एक अगर मान लीजिए $1 मिलियन का पेमेंट है, विच इज अ नॉर्मल पेमेंट, तो अगर उसमें आप मेजर करेक्शन भी आ गया और आपने उसको बचा लिया, इट्स अ ह्यूज सेविंग. ह्यूज सेविंग. तो वही राइट डिसीजन अगर आप ये लें तो मुझे लगता है कि बिजनेस में जो एडवांटेज होगा वो तो हो गई, मगर यहाँ से भी आपको काफी बड़ा एडवांटेज हो सकता है. तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट. इसका महीने का खर्चा कोई ज्यादा नहीं है. हाँ, अगर आप इसको सीखते हैं तो आज ही हम लोग एक ऐसा मैकेनिज्म भी बताएंगे, इसकी कॉस्ट भी कम कर सकते हैं. अभी तो मैंने 50 पैसे बोला, बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि $1000 की बात है, बट एट $1 मिलियन दिस विल बी टू हाई. तो कैसे उसको कम करना है वो आज हमारा पार्ट है. कैसे उसको 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे तक लाना है, जिससे आप रिस्क फ्री हो जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका एडवांटेज ले सकते. This is another chart which shows whenever price starts moving below the rising channel. I am sure you all are with me. This is rising channel. Here this is the end of bull run. यहाँ तेजी खत्म हो गई और यहाँ पे मंदी अब आएगा. इसका मतलब क्या है? अब यहाँ से करेक्शन है, तब आपको इंश्योरेंस करना चाहिए. एटलीस्ट तब तो करो, तब तो करना ही है, नहीं तो सर बहुत मेजर डेंट आ सकता है. क्योंकि डे टू डे लाइफ में आप अपने बिजनेस पर फोकस कर रहे हैं, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन एनालाइजिंग. तो व्हेनेवर सच इवेंट हैपेंस तब आपको इंश्योरेंस. व्हाट इज अ बेयरिश? व्हेन प्राइस फॉल्स, गिर रहा है, ये कुछ इस तरीके से गिरेगा. ये बिल्कुल उसका रिवर्स है. गिरावट, फिर एक बाउंस बैक, गिरावट, फिर एक बाउंस बैक, गिरावट. बाउंस बैक को ना लोग तेजी मान लेते हैं. बाउंस बैक को बहुत गिरावट आ गई डॉलर में, फिर छोटा सा राइज आएगा ना तो लोगों को लगेगा भाई ये तो तेजी है. नहीं, दैट इज अ बाउंस बैक. अगर डॉलर गिरेगा तो बस वो बाउंस बैक ले लेके गिरता ही रहेगा. राइट? तो आज हम लोग इसके चार्ट को भी देखते हैं. What we have to do is we have to just connect falling tops and falling bottoms. टॉप फॉल कर रहे हैं, बॉटम फॉल कर रहे हैं, हम सिर्फ उसी को ही हमें देखना है और वो लाइंस लगानी है. अब मेरा सवाल है आपसे, जब हम गिर रहे हैं और इस चैनल पे गिर रहे हैं, when should we hedge?
हमें पुट ऑप्शन कब खरीदना चाहिए, लेवल और द हायर, बिकॉज अगर आप इस पूरे चार्ट में देखेंगे B1, B2, B3 ये 3 ही ऐसे लेवल्स हैं जो हायर हैं, बाकी सब तो नीचे के ही हैं। तो आप अगर हायर प्राइस को बुक करेंगे तो यू विल गेट मोर मनी, और उसके बाद अगर गिरावट आती है तो सर वो इंश्योरेंस से भरपाई पूरा हो जाएगा। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो कैसे क्या उनके प्राइसेस हैं मैं उनको भी दिखाता हूँ। डॉलर का आप लिख लीजिए जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की कल की क्लोजिंग आई है, और अगर आप 14 अक्टूबर तक अपने आप को इंश्योरेंस कराते हैं तो उसका खर्चा जो है वो हैगा 14 पैसा। इसका मतलब ये है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, हाँ हो गया सर, इज इट विजिबल? और मैंने क्लियर कर दिया। इसका मतलब ये है कि सर आज का क्लोजिंग है 82 रुपीज 40 पैसा, इंश्योरेंस कॉस्ट दिखा रहा हूं मैं अब आपको, कॉस्टिंग इज 14 पैसा। ये मेरे माउस अगर आप देखेंगे तो ये 14 पैसे का इंश्योरेंस कॉस्ट है, बट दिस इज वैलिड टिल 14th ऑफ अक्टूबर। अगर गिरावट नहीं आई तो 14 पैसे की कॉस्ट लग गई, अगर गिरावट आ गई तो ये 14 पैसे का भाव बढ़ जाएगा। मान लीजिए गिरावट आ गई 81 रुपीज तक, तो इस 14 पैसे का भाव पता है क्या हो जाएगा, यहां से 1 रुपी, तो डिफरेंस कितना हो गया 1 रुपी माइनस 14 पैसा, सर 86 पैसा आपका प्रॉफिट। आई होप यू ऑल आर। इन केस अगर इंट्राडे में चार्ट बढ़ रहा है, अभी आप पता है इंट्राडे में बुकिंग कैसे करते हैं, भाई आज बुक करना है, व्हेनेवर यू हैव टाइम यू जस्ट कॉल बैंक टू डू द सेलिंग, यही होता है। मगर मैं एक चीज इसके अंदर ये एडिशन कर रहा हूँ, यू जस्ट सिंपली ओपन द चार्ट, व्हेनेवर इट रीचेस एट द रेजिस्टेंस लाइन कॉल बैंक, भैया बुक कर। सर मैं कहता हूँ उसमें यू जस्ट सेव ओनली 3 पैसा 5 पैसा, इट्स अर्निंग। बहुत सारे खर्चे होते हैं कंपनी चलाने में, कुछ भी एडवांटेज अगर हो रहा है वो भी विद इन इंट्राडे, तो वो कोई गलत थोड़ी ना है, राइट। तो मैं ये स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ इंट्राडे में भी ये लाइंस प्लॉट आप कर सकते हैं, और जब आपको तब डॉलर बुक नहीं करना जब आपके पास टाइम है, आपको तब डॉलर बुक करना जब वो अपने इंट्राडे रेजिस्टेंस पे जाए, राइट। आजकल तो वोलेटिलिटी इतनी है, कल रात का भाव दिखा रहा हूँ मैं आपको यूएसडी डॉलर का, कल का आप लो लिख लीजिए सर 82.10 कल का, और पीक है 82.83, 70 पैसा है। सर मैं ये कहता हूँ ठीक है अभी आप प्रोटेक्शन में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इफ यू आर एबल टू सेव हाफ ऑफ द मूवमेंट, 70 पैसे में से 30 पैसे भी बचा कर आप 1000 दिन का देखेंगे, मैंने शाम को ज्यादा 4 से 5 के बीच में हाँ, आप देखोगे बड़ी मूवमेंट आती है, बट यू आर नॉट अलाउड, बट इन केस ऑफ एक्सचेंज यू आर अलाउड टिल 5। आप 5 बजे तक आप सेम डे में देखा हो, मैंने 9:30 बजे में बुक कराया है और शाम को 3 बजे के आसपास बुक कराया है, ऑलमोस्ट 50-60 पैसे का डिफरेंस, 50-60 पैसे का डिफरेंस देखा मैंने। बड़ी बात है सर, हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है अगर 50 पैसे का डिफरेंस आपको इंट्राडे में मिल जाए इन टर्म्स ऑफ और मनी। आजकल ये ऑलमोस्ट रोज है, राइट, 50 पैसे का तो है ही है हाँ मिनिमम। मेरा ये मानना है सर, अगर आप 70 पैसे का इंट्राडे में मूव देख रहे हैं और आप यही सिंपल स्ट्रेटजीज इंट्राडे चार्ट पे लगा लें, और वहां से आप सिर्फ मतलब मैं कहता हूँ 30 पैसे, तो 70 पैसे की मूव है, अभी वी आर जस्ट न्यू कमर्स इन दिस, अगर 30 पैसे भी बचा पाए रेगुलर बेसिस पे या हर डिसीजन पे, या 25 पैसे भी, अगेन इट्स अ बिग डील, वेरी वेरी बिग डील। मैंने लास्ट तो हमारे को 25 पैसे के आसपास कम दे रहा होता है अमूमन। अगर आपको इससे बचना है ना तो आप एक्सचेंज पे चले जाइए, एक्सचेंज पे जो रेट आपको दिख रहा है वही मुझे दिखेगा, वही चेन्नई मुंबई कोलकाता सबको वही रेट दिखेगा, उसके अंदर कुछ भी ये लोग वो नहीं करते, यू नो कोई भी चेंजेस नहीं आ सकते इसके अंदर, जो रेट आपका होगा वही मेरा होगा, और कंसिस्टेंसी है। बैंक तो आपने जैसे बोला मुझे 25 पैसे का बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट क्या है, किसी का उनका मार्जिन 15 पैसे का है, किसी का 25 पैसे का, हर पार्टी का जैसा जिसने नेगोशिएट कर रखा है उसका हाँ। मार्जिन सेट, मगर अगर आप आपका बिजनेस कितना है, अगर यही काम एक्सचेंज पे करेंगे तो आपको कोई इम्पैक्ट कॉस्ट,
कोई भी। दूसरा एडवांटेज, आप अगर एक्सचेंज में करेंगे तो आप 5 बजे तक अलाउड है। एक्सचेंज में करोगे तो पुट ऑप्शन भी खरीद सकते हो, जो मैंने अभी इंश्योरेंस वाली बात बताई है। तो ये सर वहाँ के एडवांटेजेस है। और अगर आपको इसको लर्न करना है तो 1000 यूनिट का लॉट है, आप उसमें इसको लर्निंग कर सकते हैं। ये चीज सबसे बड़ी सबसे बड़ी। और आप ये देखेंगे कि सर ये सब छोटी छोटी बातें ना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला देती है। मान लीजिए आपने 15-20 पैसे बचा लिए, 30 पैसे बचा लिए, तो एक बड़ा इम्पैक्ट आता है इसका। तो मेरा ये मानना है आप लोगों के लिए कि आप इसको बस इम्प्लीमेंट करिए और फिर देखिए चेंजेस कितने अच्छे आपके डिसीजंस में आते हैं। देखिए टाइम अगर कम है तो स्लोली ग्रेजुअली, नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन, नहीं तो लास्ट ऑप्शन क्या है, एक टीम जो ये इसका आप फोटो ले लीजिए। This is the definition of bearish market where price makes a new low with a bounce back. ये देखिए सर बिल्कुल बट आपका एक्सपोजर है एक्सपोजर के पर हमारे से 1-2 बायर्स ऐसे थे जिसके साथ हम ऑलरेडी यूएसडी में करते थे। ओके 1.5 सेक्टर हमने देखा जीबीपी बढ़ रहा था तो हमने उनको कन्वर्ट करके अब हमारा ये हो गया 105 होता था, अब 90 से भी करीब लास्ट 87 समथिंग भी मिला है, 88 के आसपास। और अगर डॉलर होते तो सर बात ही बल्कि और यूरो तो डॉलर से भी नीचे। करेक्ट। तो देखिए इस केस में आप यही काम कर सकते हैं कि अगर ये फॉलिंग लाइन से ऊपर आ जाए तो फिर आप तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये और ज्यादा नीचे की जाने की अब आने वाले टाइम में संभावनाएं है। क्योंकि फंडामेंटल्स पे सर अपने को नॉलेज नहीं है, पे तो उतना पता है जितना न्यूज़ हमें बताता है। मगर इस केस में हमें ये इस चीज़ का फिर हमें एडवांटेज, हाँ अगर आपको कभी बुक करना है तो ये अपर लाइन पे जब भी है ना सर वहाँ कोशिश करो तो कुछ पैसे आप एडिशनल या कुछ आप एडिशन कर पाएंगे। मैं दिखा ये देखिए सर जब भी आप अपर लाइन पे आए तो यहाँ पे आके आप इसको कुछ ना कुछ फिर अपना डिसीजन जरूर लीजिए। हमारे पास अगर ऑप्शन हो तो हमारे को यूएसडी चूज करना चाहिए बाहर के साथ। अब तो सर वही है क्योंकि अब तो शायद एडवांटेज ही आपको उसमें अगर ऑप्शन सो बेयरिश मार्केट का ये चार्ट है, जब भी गिरेगा वो इसी फॉर्मेट में ही गिरेगा जो मैंने बताया, और बाउंस बैक भी लेगा ही आगे चल। और अदरवाइज यू विल हैव टू फॉरवर्ड, नहीं तो सारे काम आप ही को करने हैं तो वो बहुत ही मुश्किल है। तो यही 2 सोल्यूशन है इसके। ये देखिए तो आपको उसके लिए 2 ही सोल्यूशन है सर जो मैंने अभी तक इंडस्ट्री में नोटिस करा है। ऑप्शन अनदर इज कॉल्ड पुट ऑप्शन। पुट होता है एक्सपोर्टर्स के लिए और कॉल होता है इंपोर्टर्स के लिए। आई एम श्योर देयर इज नो इंपोर्टर इन दिस ग्रुप। एक्सपोर्टर्स तो सर अगर आप एक्सपोर्टर हैं, बाय द कॉल ऑप्शन whenever you feel, sorry, buy the put option whenever you feel the probability of price fall is very very high, तो आप इसको खरीदिए। और अगर ये यहाँ से नीचे जाता है तो जितना भी नुकसान आपको होगा आपको उसकी भरपाई हो जाएगा। क्लियर वैल्यू का है तो उसकी अर्निंग पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। सपोज करिए $1 मिलियन का आपका एक्सपोर्ट बिल है और आप $1 मिलियन का ही पुट ऑप्शन खरीदते हैं पूरे साल में और आपको अच्छा प्रॉफिट होता है तो यू डोंट हैव टू गिव एनी टैक्स, बिकॉज एक जगह लॉस है बिजनेस में, दूसरी जगह बिजनेस में प्रॉफिट है। क्योंकि डॉलर तो गिर गया 85 से 80, वहां तो ₹5 का आप लॉस दिखाएंगे, मगर यहाँ पे ये आपको एडवांटेज देगा जब ये गिरेगा तो, क्योंकि अब इंश्योरेंस का काम है ना गिरने पे आपको फायदा देना। तो 85 से जब 81 आएगा तो आपको ₹4 का लॉस वो भरपाई करेगा, बट इट इज ए प्रॉफिट इन ट्रेडिंग। तो आप ये बताएंगे कि एक जगह मुझे लॉस है बट इंश्योरेंस में प्रॉफिट है, दैट मीन्स इट्स अ सेट ऑफ कर देंगे आप इसको, तो इस पे टैक्स नहीं लगता। ये मेरे को आपको बताना है। ये CBDT का डॉक्यूमेंट है, अगर इनकेस इफ यू वांट आई विल शेयर विद यू, तो वहां से आप या हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये बात बताएं। वेरी हॉट टॉपिक। चलिए इसके बारे में भी एक डिस्कशन करते हैं। सर ये पहले मैं इसके बारे में बात करता हूँ। आज का भाव है 82.40, विल टॉक अबाउट दिस 83 का आज का प्रीमियम है 8 पैसे। सपोज हम ये ट्रेड करते हैं विच इज कॉल्ड राइटिंग, जो इसकी टर्म यूज करी जाती है वो राइटिंग बोला जाता है इसको।
आज का भाव है 82 रुपीज 40 पैसा. सपोज वी डू राइटिंग ऑफ 83 प्रीमियम इज 0.08 and this is applicable for everyone, whether you see from your office and I see from my Chennai office. So this 8 paisa will remain as it is, right? So how to use this? I strongly recommend to write 83. The moment you write 83, you will get a credit of 8 paisa immediately. आपने राइटिंग करा, आपको तुरंत 8 पैसे क्रेडिट हो जाएंगे. अब लॉस कब है इस ट्रेड में? केस नंबर 1, इफ डॉलर रिमेन एज इट इज एट द सेम लेवल ड्यूरिंग द वीक. इसका एक्सपायरी कब है? इस हफ्ते का 14 अक्टूबर का. अगर 14 तारीख तक 83 रुपीज 8 पैसा प्लस 8 पैसा और जोड़ दीजिए, अगर नहीं गया डॉलर तो ये 8 पैसे आपके. तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पहली पॉसिबिलिटी, डॉलर यहां से गिर जाए तो 8 पैसे आपके. डॉलर वहीं का वहीं रहे तो भी 8 पैसे आपके. डॉलर बढ़े कितना? 82.40, 82.50, 60, 70, 80, 90, 95, 83. इवन इन दैट केस 8 पैसे आप ही के. लॉस कब स्टार्ट होगा? 83 8 पैसा के ऊपर. बट इज इट a loss if it reaches at 83 9 or 10 paisa? Is it a loss for us? No, क्योंकि फिजिकल में जो मेरे पास पड़ा हुआ है अभी डॉलर, I'll sell it out. I'll sell it out in case if it reaches at this level, और अदरवाइज नहीं पहुंचा तो ये 8 पैसे मेरे. और ये कितने दिन की वैलिडिटी है इसकी? 1 वीक. तो सर अगर ये यहां तक पहुंचा ही नहीं तो 8 पैसे आपके. पहुंच गया तो आप इसको, ऐसा होता है कि सर मेरे पे डॉलर है एंड आप ये कहते हैं मैं अगले हफ्ते इसको सेल करूंगा. कैन यू डू दिस? ऐसा हो सकता है सर? हो सकता है. अगर आपको पैसे आ रहे हैं, कैन यू पोस्टपोन योर डिसीजन ऑफ सेलिंग? यस और नो? बताइए. यस. तो मैं ये कहता हूं आप जितना पोस्टपोन कर सकते हैं आप करते रहिए, क्योंकि हर हफ्ते अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 पैसे का आपको क्रेडिट मिल रहा है. अब अगर वो 83 नहीं गया, दैट मींस 60 पैसा और राइज नहीं करा, ये 70 पैसा, तो ये 10 पैसा आपका है. और अगर चला गया तो 70 पैसे का एडवांटेज है, तो 70 पैसे का एडवांटेज है. तो व्हाट आई रिकमेंड इज आप इसको हर हफ्ते करिए सेलिंग, राइटिंग, विच इज कॉल्ड राइटिंग. और ये हर हफ्ते, अगर आपके पास डॉलर्स हैं तो आपको ये काम हर हफ्ते करना चाहिए. हर हफ्ते. उसका एडवांटेज, अगर वहां तक नहीं गया तो पैसे आपके. चला गया तो यू विल सेल इट एट द हायर प्राइस. राइट नाउ एवरी कंपनी हैज अ सेपरेट डिपार्टमेंट टू डू दिस. दे हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स. दे आर एवरी डे दे आर डूइंग दिस. तो आपको क्या करना है बताइए. वीक स्टार्ट हुआ फ्राइडे, जस्ट डू दिस राइटिंग. जहां पर आपको लगे प्रीमियम एक हफ्ते का सफिशिएंट है, विच इज 8 to 10 पैसा. ये एक हफ्ते का थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, जैसे आज का भाव है 82 रुपीज 40 पैसा और आई एम टॉकिंग अबाउट 83, तो 60 पैसे अवे है. तो या तो 60 पैसे आपको एक्चुअल में मिलेंगे फिजिकल सेलिंग में, नहीं तो ये 10 पैसे क्रेडिट होगा. एंड आई विश कि कभी ये 83 या उस लेवल तक जाए ना. तो क्या होगा? एवरी वीक you will get approximately 10 पैसा. What will be the advantage? मैं इसको ना एक प्लेन वलीना टर्म्स में बताता हूँ और ज्यादा. सपोज करिए मेरे पे 2 घर है, एक घर मेरा है और एक घर मेरे सेल करना है. तो वहां पर एक बंदा आता है, वो कहता है सर ये आप ना टोकन अमाउंट रख लो, 1 करोड़ का घर है, मैं आपको 1 लाख रुपया टोकन अमाउंट दे रहा हूँ, मगर मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगा आपसे घर लेने. आज भाव क्या है? 1 करोड़ रुपए. उसके मन में पता है क्या बात है कि बॉस अगर ये 1 करोड़ 10 लाख का हो गया ना 1 हफ्ते में, तो ही मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा. राइट? व्हाट विल हैपन? अब आप वो क्या करेगा, जैसे ही 1 हफ्ता एक्सपायरी पे आएगा,
वो आपको फोन करेगा, सर वो घर लेने आ जाओ, आपने टोकन अमाउंट दिया था। अब उसने तो टोकन अमाउंट ले लिया आपसे, क्यों ले लिया? क्योंकि उसको पता था ये भाव ऊपर नहीं जाएगा। अब वो 1 करोड़ 10 लाख गया नहीं, तो ये पैसा किसका हो गया? सेलर्स का। या आपने इंश्योरेंस खरीदा है कभी किसी भी प्रोडक्ट का? इंश्योरेंस सेल भी तो कोई करता है। मान लीजिए 10 लाख की कार का 30,000 रुपए का इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी को कब बेनिफिट होगा? कार को नुकसान हाँ ना आए कोई क्लेम लेने। अगर कोई क्लेम करेगा तो उसको डिसएडवांटेज है, मगर पता है इंश्योरेंस कंपनी किस असम्पशन पे चलती है कि हर साल क्लेम नहीं आए, इसी असम्पशन पे चलती है। यही असम्पशन आपको इसमें रखना है। क्या डॉलर हर हफ्ते 60-70 पैसे 1 रुपया बढ़ जाएगा? नहीं, नहीं तो ये पैसा आपका। नाउ इन दिस केस यू आर इंश्योरेंस सेलर, आपने इंश्योरेंस बेच दिया, डॉलर बेच दिए। अगर डॉलर इस भाव पे नहीं आया तो हमें ज्यादा बेनिफिट है। कितना? 70 पैसे का। फिजिकल में कितने पड़े हैं? मान के चलिए 1 मिलियन या ½ मिलियन या जो भी आपका है। अगर वो 70 पैसे ऊपर गया तो बॉस प्रॉफिट आपका, नहीं गया तो हर हफ्ते आपको वो पैसे आते रहेंगे और वो आपकी टॉपिंग होती रहेगी, एडवांटेज होता ही रहेगा। और मेरे को लगता है कि जिसका भी आज की डेट में हेजिंग डेस्क है, एवरी कॉर्पोरेट, इवन रिलायंस से लेके आप किसी भी कॉर्पोरेट की बात करें, वो ये काम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। लगता है आपको इतनी वोलेटिलिटी डॉलर के अंदर रहती है कि वो हर हफ्ते 60 पैसे बढ़ जाएगा? लगता है सर 60 पैसे हर हफ्ते बढ़ने का मतलब क्या है? 18 रुपये महीना। हाँ जी, 18 रुपये महीना। 60 पैसे हो गया। करेक्ट। तो सर नहीं, हर हफ्ते अच्छा, हर हफ्ते सर, टोल पर 50 पैसा हो गया। हाँ, तो साल का कितना हो गया सर? तो क्या इतना बढ़ जाएगा 10 पैसे? नहीं। और अगर वो नहीं बढ़ेगा तो ये सर पैसे आपके हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज इसकी लर्निंग बहुत कम क्वांटिटी से हो सकती है, $1000 राइट। और आपको इसको और अच्छा करना है तो मैं आपको इसको एक एडवांस मैकेनिज्म बताता हूं। मान के चलिए आपके पास $10 लाख है, आप इसको $3 या $4 लाख पे बेच दीजिए, $3 लाख या $4 लाख के बेच दीजिए, राइट। अगर नहीं बढ़ा भाव तो वो पैसे आपके। भाव अगर बढ़ गया तो क्या होगा? फिजिकल में कितने बढ़े? 10 लाख, राइट। तो फिजिकल पे एडवांटेज कितने का होगा? 10 लाख यूनिट पे। अगर ये 70 पैसे बढ़ेगा तो हमें लॉस होगा, तो 10 लाख पे आपको 70 पैसे एडिशनल मिलेंगे। और अगर नहीं बढ़ा तो 3 लाख पे 10 पैसे आपके हर हफ्ते। तो ये एक एडिशनल इनकम है जिसको आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। जितना पोस्टपोन करते रहेंगे उतना आपको इसके अंदर एडवांटेज होता रहेगा। और इसमें लिक्विडिटी बहुत है, जितना आप डॉलर करना चाहे 1 मिलियन 10 मिलियन व्हाटएवर, आप उतना ट्रेड इसके अंदर कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। लर्निंग के लिए सिर्फ 1000 यूनिट से स्टार्ट करिए, कोई मेजर लॉस नहीं होगा, कोई मेजर प्रॉफिट नहीं होगा। बट इन परसेंटेज प्रॉफिट की और लॉस की आपको पता लग जाएगी। एक साल में 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक इंटू 10 पैसा। इफ यू सपोज इफ यू मेक 10 पैसा ओनली एवरी वीक, तो कितने हो गए सर? 5 रुपए हो गए अप्रोक्सीमेटली। तो ये 5 रुपए एक आसान गेम है। नहीं तो अगर इसमें लॉस हुआ तो आपको 60 पैसे का एडवांटेज फिजिकल में होगा। तो इसको आप अगर रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको काफी बड़ा एडवांटेज हो पाएगा। किसी को कोई भी डाउट, हर हफ्ते आपको ये क्रेडिट आता ही रहेगा। जितनी बड़ी वैल्यू होगी या जितनी बड़ी डॉलर्स आपके पास हैं, जितने ज़्यादा है, उसका एडवांटेज आप लोगों को आता ही रहेगा। कोई डाउट है? सर कोई डाउट? इसके अंदर ना मतलब मैंने कई बार देखा रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, अगर आप पर एक चीज है इसमें, एक्सपोर्टर्स के पास इतना स्पेयर मनी होना भी तो चाहिए ना। हर आदमी क्या करता है, मैंने बैंक से लोन लिए हुए हैं, EPC लिया हुआ है, अगर वो भी तो देखना होता है ना, मैं उसमें मैं एडजस्ट कराऊं या उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है कि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। ये तो सर ये देखिए, मुझे लगता है कि क्योंकि हर हफ्ते अपॉर्चुनिटी आपके सामने है और वो भी आपके सामने है, वो जो इंटरेस्ट पे करना है या कोई भी कॉस्ट है,
तो आप दोनों में कंपैरिजन कर लीजिए, इस हफ्ते आपको किस में ज़्यादा एडवांटेज लग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके सामने दोनों ही फिगर्स होंगे, अगर वो जो भी बेनिफिशियरी है तो आपको वो ये काम हर हफ्ते भी कर सकते हैं, हर हफ्ते। तो ये एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था जो हर हफ्ते आपको एक अच्छे पैसे बनाकर दे सकता है। आपको सिर्फ हाँ मान के चलिए आप और नीचे आते हैं, आप कहते हैं विजय आज का भाव तो चल रहा है 82 रुपीज 40 पैसा, बट आई डोंट एक्सपेक्ट डॉलर विल गो अबव 82 रुपीज 75 पैसा। आप अभी तो मैंने बात करी 83 की, मगर अब हम बात कर रहे हैं 82 रुपीज 75 पैसा। तो यू नो द प्रीमियम इज 13 पैसा, 13 पैसे का आपको एडिशनल प्रीमियम है, मगर इसमें लॉस का होगा। माय क्वेश्चन इज वेयर विल यू हैव लॉस इन दिस केस? 83 पे अगर क्लोज हो गया 82.75 प्लस 13 पैसा is how much? 82.88 तब होगा। और ऐसा अगर हो जाए तो व्हाट विल हैपन? फिजिकल से आपको बहुत बड़ी एडवांटेज। सर अगर आपको इसी हफ्ते कुछ करना है, मान लो आपको इसी हफ्ते डॉलर सेल करने हैं, देन आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू डू दिस। अगर वो नहीं गया तो वो तो डॉलर बेच ही दो, क्योंकि आपको बेच नहीं है, और आपको 13 पैसे का तो क्रेडिट ले लो। चलो एक तो होता है हर हफ्ते करना, आपने सर बोला कि विजय कुछ बिजनेस डिसीजंस होते हैं जो हमें लेने पड़ते हैं, आई एम विद यू, बट इफ डज नॉट राइजेस अप टू दैट लेवल, टेक द 13 पैसा। और अगर जाता है तो आपको 82 प्लस 88 पैसे का एडवांटेज फिजिकल में होगा। तो इस चीज को आपको देखना है, और ज्यादा से ज्यादा आप अपने डिसीजन को ऑप्टिमाइज अगर करते हैं। सर महीने में एक बार कन्वर्जन हो जाता है, मतलब सेलिंग हो जाती है एक महीने में एक बार, डॉलर्स का जो भी पेमेंट आता है, तो तब आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और बाई चांस आपको लगता है विजय हम 2 हफ्ते भी रुक सकते हैं पेमेंट को सेलिंग के लिए, तो ये आप 2 हफ्ते लगातार करेंगे तो 13 प्लस 13 26 पैसा। और अदरवाइज फिर बिजनेस डिसीजन से आपके वो कितना आप ले सकते हैं। ऑन एवरेज 50 पैसे दूर का करेंगे राइटिंग, तो आपको करीब 13 से 15 पैसे मिलेंगे, और 60 पैसे दूर का करेंगे तो आपको करीब 8 से 10 पैसा हर हफ्ते ये मिल जाएगा। कोई इसमें डाउट है? 8 से 10 पैसा क्लियर है ये? सो क्लिक ऑन इट। ये आपके सामने टेबल आ गया। लाइक दिस, ये टेबल कुछ इस तरीके से ओपन होगा, ये आपके सामने। आपको जो देखना है जब इंश्योरेंस खरीदना है तो ये पुट साइड देखना है। This table is divided into 2 parts. One is called call option, second is called put option. When you have to buy put, जब इंश्योरेंस करना है तो ये वाला साइड देखना है, और जब आपको हर हफ्ते प्रीमियम अर्निंग करना है तो आपको कॉल साइड देखना है। ये देखिए, और उसको चेक करने का मैं वो भी दिखाता हूँ। स्क्रॉल इट डाउन, और ये वो तरीका है 82, 75, 83, ये 8 पैसे का ये प्रीमियम आपके सामने है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिखना है NSE करेंसी डेरिवेटिव्स। इनमें आपने कॉल राइट करेंगे, कॉल सेल करेंगे। फिजिकल तो पड़ा है, एक्सचेंज पे 83 रुपीस वाला कॉल सेल करेंगे, एंड द प्रीमियम ऑफ दैट इज 8 पैसा। एक्सपायरी इज ऑफ 14 अक्टूबर। इसकी एक्सपायरी हर थर्सडे को होती है। अगर मैंने यूएसडी सेल कर रखा है, हाँ, तो अब अगर वो 83 नहीं गया तो ये 8 पैसे आपके, चला गया तो 60 पैसे एडिशनल आपको मिलेंगे। जिस हफ्ते आपको सेलिंग करनी है उस हफ्ते ये काम आपको जरूर करना है। कुछ भाई बैंक, पहली बात राइट डिसीजन कब लें? जब डे के हाई पे हो तब लें। फिर दूसरा, जब आप वो रेट लें कॉलिंग तभी करें। उसके बाद फिर आप अगर ये भी चीज ऐड कर लेते तो वीकली एक एडिशनल अमाउंट भी जनरेट कर सकते हैं। हर हफ्ते अगर आप ये करते हैं, या जब भी आपको अपनी पेमेंट्स बुक करनी है
मतलब आप ये करते हैं तो आपको ये काफी बड़ा एडवांटेज ब्रोकरेज ब्रोकरेज करेक्ट। इसमें भी है। हाँ जी सर वो नेग्लिजिबल है, मतलब इट्स 0.01%, तो वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। अदरवाइज जब आपका वॉल्यूम एक्सचेंज या ब्रोकर देखेगा ना तो आप उससे नेगोशिएट भी कर सकते हैं ब्रोकरेज, तब आपका अपर हैंड होता है। मान लीजिए अभी तो लर्निंग पर्पस है, अभी तो कुछ भी एक नॉर्मल सी ब्रोकरेज दे दीजिए, जितना आपका रेट बढ़ता आई मीन जितना वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा देन यू कैन नेगोशिएट। वो आपका अपर हैंड है और उसमें वो देखते हैं भाई बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, जितना आपका क्वांटिटी बढ़ता रहेगा वो बहुत कम आ जाते हैं, क्योंकि उनको रेगुलर बेसिस पे हर हफ्ते इनकम होता है और इस चीज को सबसे स्मार्ट डिसीजन कहा जाता है। तो इसलिए वो लोग अच्छा नेगोशिएट प्रोडक्ट में है। आपको लगता है विजय मुझे ना गोल्ड ज्वेलरी भी एक्सपोर्ट करनी है, हाउ यू एक्सपेंड इट? वन वे इज टू स्टार्ट द गोल्ड बिजनेस, फिर उसका हैंडीक्राफ्ट बनाओ, वो सब करो, एक्सपोर्ट, सब वो एक तरीका है, कोई और भी तरीका है? मैं बोलूं आप एक्सपोर्ट तो बहुत अच्छी तरीके से समझते ही हो। अगर आपको अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करना है तो जो कंपनीज एक्सपोर्ट के अंदर ऑलरेडी हैं एंड दे आर डूइंग वेरी वेल, आप उस कंपनी के शेयर्स खरीदें। आपको कहीं और किसी और कंपनी के नहीं खरीदने, टीसीएस, इन्फोसिस, नो, आपको किसके खरीदने? जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि आप एक्सपोर्ट पे उससे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सो व्हेनेवर यू डू दिस टाइप, व्हेनेवर यू टेक सच डिसीजन, बिकॉज स्टॉक मार्केट में भी लोगों को ना एक बहुत वो रहता है कि यार ये तो इट्स अ गैम्बलिंग प्लेस। यू नो व्हेन इट इज अ गैम्बलिंग प्लेस, व्हेन यू डोंट नो अबाउट द कंपनी, व्हेन यू डोंट नो अबाउट द बिजनेस, व्हेन यू डोंट नो अबाउट योर पार्टनर्स। तो अगर आप अपने पार्टनर से रेगुलर टच में रहें, मतलब जिसका कंपनी का शेयर आप खरीद रहे हैं उससे 3 महीने में एक बार बात करें, और वो कंपनीज खरीदें जिसकी नॉलेज, जिस सेक्टर की नॉलेज आपको है, तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे कितने अच्छे बिजनेस डिसीजंस आप ले सकते हैं। इसी तरीके से तो मैं तो हैंडीक्राफ्ट में हूँ, मैंने एक ऐसे बंदे की कंपनी खरीदी जो गोल्ड का गोल्ड हैंडीक्राफ्ट में, गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट में है, तो मुझे वो एडवांटेज होगा। कुछ कंपनीज फार्मा के अंदर है, वो बड़ा एक्सपोर्ट करती है। तो इस तरीके से आप बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। और देखिए अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं बिजनेसेस में, तो कभी ऐसा लगता है कि अब डाउन है तो इस टाइप से आप अपनी वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो करने का तरीका क्या है? जो भी आपकी मंथली इनकम है, ईयरली इनकम है, उसका मिनिमम 1% से लेके मैक्सिमम 10% को स्पेयर करिए। जब भी जिस स्टॉक में आपको पैसे लगाना है उसमें जब भारी गिरावट आए, ओनली देन यू हैव टू इन्वेस्ट दैट मनी। आज इसका भाव करीब 578 है। सो जस्ट नोटिस वन थिंग, व्हेनेवर देयर इज अ ड्रॉप, जब भी इसके अंदर गिरावट आई है तो इसका भाव बढ़ गया, तो आपको इस करेक्शन में ही इन्वेस्ट करना है। अगर आप मेरा माउस देख पा रहे, ये एक करेक्शन आया था, यहाँ एक छोटा करेक्शन था, यहाँ एक छोटा करेक्शन था। हर करेक्शन के बाद इट रीचेस एट द न्यू हाई, राइट? So every time it's not possible to start a new product, to launch a new product, but since you understand export, तो आप क्या करेंगे? जिसका भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, I am sure that company should exist in the market. उस टाइप की कोई ना कोई कंपनी जरूर हो। टॉमी का जितना भी एक्सपोर्ट होता है ना पूरा वर्ल्ड वाइड, वो यहीं बनता है सारा, और वो यहीं से एक्सपोर्ट होता है। तो जब भी उसमें गिरावट आती है वो उस शेयर को खरीद लेते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने अपना बिजनेस भी डाइवर्सिफाई कर लिया, और इसी तरीके से देखिए ये एक वर्चुअल डाइवर्सिफिकेशन है, हेजिंग भी आपके बिजनेस की। एंड आई एम नॉट सेइंग टू इन्वेस्ट अ ह्यूज अमाउंट। 10 लाख का इनकम है, आप उसमें से 10,000 भी लगाओ, 50,000 भी लगाओ, जो आपको लगे, क्योंकि वो पैसा आपके लिए नेग्लिजिबल है, आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा आपके टोटल प्रॉफिट का, सिर्फ 1% इम्पैक्ट कभी नहीं करेगा। मगर जब आप उसको गिरावट में इन्वेस्ट करोगे तब आपको वो बड़े अच्छे रिटर्न्स देगा ही देगा। इस तरीके से हम अपना बिजनेस भी हेज कर सकते हैं और इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, राइट? तो किसी भी बिजनेस में अगर आपको जाना है, एक्सपोर्ट के हर, चाहे सॉफ्टवेयर की बात करें, फार्मा की बात करें, हैंडलूम्स की बात करें, वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट जरूर होता है। तो जब भी उन टाइप की कंपनीज में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो दिस द राइट स्ट्रैटेजी फॉर इन्वेस्टमेंट। और एक बात मैं बता देता हूँ, इसमें आप अपनी वेल्थ भी क्रिएट
कर सकते हैं, बिकॉज व्हेनेवर दिस इज द ओनली प्लेस जो आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है जब आप इसमें आपको बहुत ही कम पैसे लगते हैं। बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट अदर एसेट क्लासेस, प्रॉपर्टी और गोल्ड, वहाँ पे तो बहुत पैसा चाहिए, यहाँ पे तो बहुत ही कम चाहिए, 10,000, 20,000, 5,000, 1 लाख, whatever, but when to buy when it falls, right? तो गाइस अभी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो बताइए, अदरवाइज दिस इज एंड ऑफ सेशन। आई एम श्योर आप लोगों ने इसको एंजॉय करा होगा। और वी आर अ ट्रेनिंग कंपनी और हम लोग ट्रेनिंग देते हैं करेंसी एनालिसिस का, जैसे अभी मैंने जो भी मैकेनिज्म्स बताए, प्लस हम लोग स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग देते हैं। इन केस कभी भी आप लोगों का फ्यूचर प्लान है इस टाइप की ट्रेनिंग लेने का, देन यू कैन गेट इन टच। I hope your queries must have been resolved, otherwise you have the numbers on the screen. You can get in touch with Mr. Jay Kaushik. So before we wrap up, we have with us Mr. Ravi Pasi, who is our past chairman of EPCH. Sir, आपकी कहना चाहोगे? Mr. Vijay Kaushik, members exporters, मुझे लगता है कि कल से हम बहुत ज़्यादा ही थके हुए हैं। रावत जी भी हमारे साथ थे, कल एक हमारी स्कीम की मीटिंग थी पीयूष गोयल जी के साथ, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी वहाँ पे थी, अनुप्रिया जी। तो ये थोड़ा सा मैटर कल वहाँ पे डिस्कस हुआ कि आने वाले टाइम के अंदर डॉलर इज स्लाइडिंग डे बाय डे, और कहीं ऐसा ना हो कि वर्ल्ड के अंदर एक 1929 के अंदर इन्फ्लेशन एक ऐसा आया था कि जिसके अंदर गवर्नमेंट ने स्पेशल ऑर्डर करके हमारे जितने भी लॉकर्स के अंदर सोना था वापस ले लिया था। गवर्नमेंट हैज द पावर, ये यूएस में भी हुआ था। खैर ऐसी नौबत तो नहीं आने वाली, मगर आप जैसे कि कौशिक साहब ने बोला, थोड़ा डॉलर्स में लगा लो, थोड़ा एफडीआर में लगा लो, थोड़े आप जो फंड्स हैं गोल्ड में लगा लो, बट कीप इट इन ए प्रॉपर वे। ये नहीं कि ब्लैक हुआ और ब्लैक को आपने उधर लगा दिया, यू गेट सम रिसीट्स आल्सो, आई थिंक दैट बेटर। और एक्सपोर्ट्स के लिए अभी गवर्नमेंट भी काफ़ी ऐसे स्टेप्स लेने जा रही हैं जिसमें कुछ जो बेनिफिट्स हैं, हम 5 साल से लड़ रहे हैं उनके साथ, के रोडअप है आपका, ऐसी जो स्कीम्स हैं तो उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करो, और ताकि एक्सपोर्टर्स को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। अभी जैसे कौशिक साहब ने बताया कि आप इसके अंदर इंश्योरेंस भी है। मेरे को एक चीज़ आप बताएं कि इंश्योरेंस जो आप करवाते हैं इसके अंदर, वो दैट इज ओनली फॉर द टाइम बिंग, या उनका एक बॉक्स बनाया जाता है कि जैसे भी दिस इज वैलिड फॉर 1 ईयर और 1 मंथ और सम मोर डेज ऑल्सो। अगर कोई लूज करता है तो कितने पैसे उसके जाते हैं, अगर कोई प्रॉफिट आता है तो वो तो प्रॉफिट तो जल्दी देख लेते हैं हम लोग। मैं बता देता हूँ, लाइक सर इंश्योरेंस जो है वो हम लोग 1 हफ्ते के लिए भी खरीद सकते हैं, 1 महीने के लिए भी खरीद सकते हैं, 1 साल के लिए भी खरीद सकते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो हमें इसकी परमिट देता है वो 13 मंथ तक की देता है। अगर आज मान लीजिए मैंने 82 रुपीस का इंश्योरेंस खरीद लिया है एंड द वैलिडिटी इज ऑफ 1 मंथ, तो अगर 1 महीने में 82 रुपए के नीचे चला गया डॉलर, तो वो आपको जितना भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेगा, राइट। और अगर 1 साल का आप खरीदते हैं तो 1 साल में अगर वो 82 रुपए के नीचे गया तो आपकी भरपाई होगी, और ऊपर जितना भी गया तो वो आपका एडवांटेज है सारा, जितना भी ऊपर गया। तो बैंक में क्या होता है, पार्शियल हेजिंग होती है, भाई ऊपर गया तो आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा, मगर नीचे गया तो पूरा एडवांटेज है। एक्सचेंज में ये है कि आपको 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल, 3 महीने, 6 महीने, आप जितने मर्जी दिन का इंश्योरेंस ले सकते हैं, और जितना नुकसान होगा उसकी भरपाई आपको हो जाएगी। और ये इंपोर्टर्स के लिए भी होता है और एक्सपोर्टर्स। And we hope that we are going to meet again also with our because of today weather is such that there are less people, but we do it very quickly also. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. Now, since we could not formally welcome our faculty, since our past chairman is here with us, sir, can we now in the end formally welcome Mr. Kaushik?